इब्रानी जितनी औरतें हैं इनको थोड़ी लो जाति की औरतें माना जाता था, and these women were considered to be of a low caste, और औरतों को इतना हक नहीं दिया जाता था कि वो पूरी सभा में कुछ बोल सके। and the women were not given any right to speak in the congregation. चाहे आपको बोलने का हक नहीं, पर आपसे विश्वास करने का हक कोई छीन नहीं सकता। Even though you might not have right to speak, but no one can take away your right to have faith. चाहे आपको कहने का हक ना हो, चाहे आपको बोलने का हक ना हो, चाहे आपको एक्सप्रेस करने का हक ना हो, पर विश्वास करने का हक आपसे कोई ले नहीं सकता। You might not have right to speak or express anything, but no one can take away your faith or your belief. Somebody say hallelujah. Hallelujah. ये हक नहीं खुदावन देख रहा कि तू कितना अच्छा बोलता, कितना अच्छा गीत गाता है, वो ये देखता तेरा विश्वास कितना है। The Lord doesn't see how good you speak or how good you sing. He only sees how big your faith Let is. me tell you, चाहे उन्हें राजा ने उन्हें बहुत बड़ी एक हुक्म से बांध दिया, पर खुदावंत का हुक्म उससे भी बड़ा है। Even though they were tied to such a command of the Lord, but the Lord's commandment is bigger than the command of a man. उनकी स्टोरी में कोई वैल्यू नहीं है, उनकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका एक छोटा सा काम है, छोटी सी इनकम है, छोटी सी बरादरी में जाने जाते हैं, पर वचन कहता है खुदावंत का खौफ रखने वाले लोग पूरी दुनिया में ऊंचे उठाए जाएंगे। And you know, these women didn't have any interest in anything else, because they just do a small job and they are just paid a small amount for that. But they have the fear of the Lord, and the law says the one who have fear of the Lord, they will be lifted up higher in this आपको world. पता है एस्थर जौन सी थी, वो कौन सी यहूदियों में से थी? And Esther was a Jewish woman. और वचन में साफ लिखा है जो यहूदी थे वो कभी राजा और रानी और उस पदवी पर कभी पहुंच नहीं पा सकते हैं। And Jewish people were never made to put on the throne of the king or queen. यहूदियों में से सिर्फ एक राजा निकला जिसका नाम यीशु मसीह है। And there were only one king that came out of Jewish people, और whose name is वचन साफ Jesus. कहता है कि एस्थर जौन सी थी वो यहूदी थी, And the word of God says clearly that Esther was a Jewish. और वचन में साफ लिखा राजे के सामने जो हमान ने जाकर ये कहा कि तेरे हुक्म की पालना कोई इंसान नहीं करता, वहां पर एक इंसान का नाम मोर्देखाई था, तो वचन के अनुसार राजे ने मोर्देखाई को मारने का हुक्म दे दिया। So when Haman went to the king and said that no one is obeying your commandment, one person is not obeying his commandment, his name is Mordecai, and then the king sent a command to kill that man. वचन साफ कहता है कि मोर्देखाई जौन सा था वो खुदावंत की हजूरी में अपने सिर को झुकाता था सिर्फ। And the word of God says that Mordecai only used to bow his head in front of the presence of the Lord. वो कभी भी इस खौफ में नहीं रहा कि कौन मुझे कह रहा है, जो कौन मुझे रोक रहा है, कौन मुझे मारना चाहता है, कौन मुझे रोकना चाहता है, कौन मुझे चुप कराना चाहता है। वो सिर्फ खुदावंत के सामने बोलता, अपने विश्वास को जिंदा रखता। He never cared about, he never feared what other people think, if other people want him to shut or speak, but he only bows his head in front of the Lord. उसकी स्टोरी में कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं था। There was no interesting part in his दुनिया के story. सामने वो लूजर था। He was a loser in the eyes of the world. दुनिया के सामने उसके अंदर कोई कुछ भी अच्छा नहीं था। And there was no good in him according to the eyes of the पर world. खुदावंत के सामने he was the most interesting part. लेकिन in the front of God, परमेश्वर के सामने वो बहुत ज़्यादा interesting खुदावंत इंसान के था. सामने आपकी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। Your life is very interesting in the sight of the Lord. जब आप प्रार्थना में बैठते खुदावंत आपसे बात करता है। When you sit for prayer, the Lord talks to you. जब आप उपवास करते खुदावंत आपके फलों को बढ़ाता है। So when you fast, the Lord gives growth to your जब fruit. खुदावंत के सामने आप घुटने टेकते खुदावंत आपकी सभी कमियों को दूर करके आपके अंदर बल डाल देता है। So when you kneel down before the Lord takes all your weaknesses away and fills you with His strength. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. Let me tell you, जब खुदावन आपको तैयार करना शुरू करे आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। So when the Lord starts preparing you, your value starts increasing. आपकी स्टोरी बाहर निकलेगी और पूरी दुनिया सुनेगी और दुनिया विश्वास करेगी यीशु ही परमेश्वर है जिससे नजात और मुक्ति मिलती है। Your story will go out in the world and the world will know and believe that Jesus is the only Lord through whom the salvation और comes. वचन में साफ लिखा है एस्थर ने राजा के सामने जाके 3 दिन की उपवास रखकर राजा के सामने दिलेरी के साथ कहा जो कुछ हो रहा वो गलत हो रहा है, उसका विश्वास अपने परमेश्वर पे था। And the word of God says very clearly that Esther fasted and prayed for 3 days, and then she went in front of the king and said whatever is happening is wrong, and she had the fear of the Lord and she had faith in the Lord. आपकी वैल्यू चाहे दुनिया में है या नहीं, अगर आप विश्वास है दुनिया आपको सुनेगी और उस विश्वास भी करेगी। You might have no value in the world, but if you have faith, the world will listen to you and will also believe. यीशु मसीह को साइड पर रख के कुछ भी कन्विंस करने की कोशिश करना किसी को कोई भी
कन्विंस नहीं होने वाला। So if you put Jesus aside and try to convince anyone, then that person is beyond यीशु conviction. मसीह को साइड रख के कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करना, कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होने वाला। So if you try to build any relationship apart from Jesus, that relationship cannot be built. बहुत हार्ड होता है कि यीशु मसीह को सामने रखना, कि यीशु मसीह को सामने रखने वाले लोग वो लोग हैं क्योंकि दुनिया जिन्हें पसंद नहीं करती है, दुनिया जिन्हें लाइक नहीं करती, वो यीशु मसीह को भी लाइक नहीं करती है। वचन में साफ लिखा, कहते हैं कि जो इंसान परमेश्वर की बातों में है, परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर से नजर आता The है। word of God says the person who is in the words of the Lord's character is seen through his life. जो परमेश्वर के कामों को पकड़ता है, वो परमेश्वर के कामों को पूरा भी करता है। The one who holds to the works of the Lord, he even fulfills the works of the Lord. अकेला इंसान बाइबल पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि सचमुच मेरे को बाइबल पूरी आ चुकी है। A person who reads this word cannot say that I know every word in this पढ़ने word. वाले अकेले लोग कभी भी गवाहियों के लिए खड़े नहीं होते। It's not only the readers who can give the testimonies, वचन पे खड़े होने वाले लोग गवाहियों के लिए खड़े होते but the हैं। ones who stand on this word, they are the people who are ready for the हुण testimonies. बोलो जोर दी हालेलुया। अगर आप इस पे खड़े हैं, इसकी बातों पे खड़े हैं, चाहे आपको दुनिया पसंद करे ना करे, खुदावंद आपको पसंद करता। लेट मी टेल यू, अगले दिन आपकी अच्छी गवाही बनने वाली So है। even